ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہورر سٹوری پرچھائی ایپیسوڈ نمبر 6۔ وڈیرے سالار خان نے گرم نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے جوان بیٹے سے الجھنے کی کام ہی کوشش کرتا تھا، لیکن اس بار بیٹے کے ناگوار لہجے پر وہ بھی بھڑک اٹھا، مگر پھر بس ضبط کا دامن تھامتے ہوئے قدرے برہمی سے بولا، یہ سارا تمہارا قصور ہے۔ جب تم جانتے ہو کہ میں سومری سے متعلق اس حویلی میں نہ کوئی تذکرہ پسند کرتا ہوں اور نہ ہی اس کی کوئی تصویر، پھر تم نے کیوں سومری کی تصویر ماں کو بنوا کر دی تھی؟ اس طرح تو وہ اور بھی سارا دن پڑی روتی رہتی ہے۔ باپ کی بات سن کر بیٹے کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری اور وہ باپ کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر سپاٹ لہجے میں بولا، بابا سائیں، آپ کو شاید معلوم نہیں، امر گودی کا سکتہ ادی سومری کی تصویر دیکھ کر ہی ٹوٹا تھا۔ تم دونوں ماں بیٹا میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے سامنے سومری کا کوئی ذکر، کوئی تصویر نہ آئے۔ وہ مر چکی ہے اور میرے لیے جیسے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، سمجھے؟ یہ کہہ کر وڈیرا سالار خان غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے جانے لگا تو اچانک اس کے کانوں سے بیٹے کی آواز ٹکرائی، بابا، ادی سومری مری نہیں، اسے آپ نے قتل کیا تھا۔ رحمت اللہ، تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو۔ باپ کو بھی جیسے غصہ آ گیا۔ حد تو آپ نے ختم کر کے رکھ دی ہے بابا سائیں، ادی سومری کا قتل کر کے۔ رحمت اللہ، باپ عالم غیظ میں زور سے دھاڑا۔ اس کی شعلے برساتی آنکھیں بیٹے کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ تب ایسے میں منشی جمعہ خان نہ جانے کہاں سے آن دھمکا اور سالار خان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رحمت اللہ کے چہرے پر بھی غم و غصے کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ سائیں وڈا، جوان اولاد سے نہ ہی الجھنا چاہیے، منشی جمعہ خان نے وڈیرے سالار خان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اسی وقت اوطاق میں لے آیا تھا اور ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پلانے کے بعد اس سے بولا۔ وڈیرے سالار خان کے چہرے پر ہنوز برہمی کے آثار تھے۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اپنی انگارہ آنکھوں کو گردش دیتے ہوئے بولا، منشی، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ اس سے میرا ٹاکرا نہ ہو، مگر آج اس نے حد ہی کر دی۔ پھر جیسے وہ اپنے آتش گیز پر قدرے قابو پاتے ہوئے جمعہ خان سے بولا، تو بتا، یہ بچل ہوش میں آیا، اس نے کچھ بتایا؟ نہیں سائیں وڈا، اس پر تو لمبی بے ہوشی طاری ہے، منشی نے بتایا۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آتا ہے تو چڑیل چڑیل کہہ کر دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر وڈیرے کی گھنی بھوؤں تلے موٹی موٹی ابری ہوئی آنکھوں میں الجھن سی تیرنے لگی اور پھر وہ ایک گہری ہنکاری بھر کر بولا، مٹھو کا کیا بنا؟ وہ بھی تو اسی کے ساتھ گیا تھا۔ اس کا بھی ابھی کچھ پتہ نہیں چل سکا سائیں بھوتار۔ ویسے میں نے آدمیوں کو اس کی تلاش کے لیے دوڑا دیا ہے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ جا کر سو جائیں سائیں، صبح تک ساری تفصیل پتہ چل جائے گی۔ نہیں منشی، وڈیرا اچانک منشی کی بات سن کر گونجدار لہجے میں بولا۔ خلا میں غیر مری نقطے کو گھورتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آتش انتقام کے شعلوں کی تپش تھی۔ جب تک میں محمد ملوک کو اپنے ہاتھوں سے کتے کی موت نہ ماروں تب تک مجھ پر سکون حرام ہے منشی، مجھ پر نیند حرام ہے۔ جا میرل سے کہہ کہ بوتل اور سوڈے کا بندوبست کرے۔ منشی جمعہ خان وڈیرے کی لخت لخت بدلتی شعلہ فشاں کیفیت پر لرز گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ جیسے کچھ سوچتے ہوئے بولا، سائیں وڈا، ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ سائیں وڈا، مجھے تو لگتا ہے یہ بٹ سائیں ہی محمد ملوک ہے۔ منشی جمعہ خان کی بات سن کر وڈیرے سالار خان نے ایک لمحے کو اس کی طرف گھور کر دیکھا اور پھر چونک کر بولا، یہ کیا کہہ رہا ہے رے تو؟
तुझे कैसे पता चला? हाँ साईं, बस मुझे उस पर कुछ ऐसा ही शक है। मुंशी जुमा खान ने गोल अदसों वाली ऐनक के अकब में उल्लुओं की तरह अपने दीदे घुमाते हुए कहा। अरे शक तो मुझे भी है, इसलिए तो मैंने मिट्ठू और बिच्चल को उसके पीछे लगा रखा है। यकीन की बात कर, कोई सबूत भी है तेरे पास? अब बेचारा मुंशी गड़बड़ा सा गया और अहमों की तरह बगलें झांकने लगा, मगर फिर दूसरे ही लम्हे पुरख्याल लहजे में बोला, साईं बड़ा फर्ज करो, अगर यही बट साईं मोहम्मद मलूक निकला तो क्या, बड़े तो क्या, मैं उसी वक़्त उसके कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दूंगा। बाबा, बडेरा एकदम चिराग पाकर होकर बोला। लेकिन साईं, मुंशी ने डरते डरते कहा, वो तो अब पूरे गोट के लोगों के लिए मुर्शिद की हैसियत इख्तियार कर गया है। बडेरा एकदम तैश के मारे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुंशी जुमा खान की तरफ कहरबार नजरों से घूरने लगा। जुमा खान को अपनी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी, ताहम वो हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। बडेरा गुस्से में बना जरूर गया था, मगर उसकी घनी मूंछों में छुपे हुए होंठ अंदरूनी उबाल से कांपने लगे थे और नथने भी फूल पिचक रहे थे। साईं, गलती हो गई। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर वही नामराद मोहम्मद मलूक है तो उसे ख़त्म करने का हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। वडेरे को गैज़ो गज़ब के आलम में पाकर मुंशी जुमा खान ने घगेआते हुए गोया अपनी गुलू खलासी करने की गरज से असल बात कह डाली। वडेरा उसकी बात सुनकर फट पड़ा। अरे बाबा, तो हम क्या किसी से डरते हैं? हम खुद गोठ वालों को उस बट साईं का असल चेहरा दिखाकर सबकी आंखों के सामने कारो करके इबरतनाक मौत मारेंगे। आखिर को उस खबीस इंसान ने हमारी इज्जत को रोंदा है। अगर किसी ने मेरे आगे आने की कोशिश की तो उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। फरते गैस से वडेरे का वजूद कपकपाने लगा, आंखों से कहरो गजब की चिंगारियां फूटने लगीं। वो बार बार अपनी उबलती खोलती कफियात पर बमुश्किल काबू पाने के लिए अपने हाथ की मुठियां भींच रहा था। मुंशी जुमा खान की तो जान ही निकली जा रही थी, मगर वो ये भी जानता था कि वडेरा जब अपने इश्ताल अंगेरी पर काबू पा लेगा तो बिल आखिर उसी की बात को ही फौकियत देगा। इसलिए दस्ते बदस्ता हाथ जोड़े उसके आतिशी गैस के सर्द होने का इंतजार करने लगा। वडेरे की खामोशी के बाद जब वडेरे का पारा उतरने लगा और अपने मखसूस मोड़े पर विराजमान हो गया तो फिर एक गहरी सांस खारिज करके कदरे मोत दिल लहजे में मुंशी से बोला, अरे बाबा बोल, कोई बात समझाना चाहता है मेरे को। मुंशी जुमा खान इसी बात का मुंतज़िर था। फौरन बोला, बाऊ साईं, मेरा मतलब था साईं, अगर ये बट साईं जिस पर मुझे शक है कि वो मोहम्मद मलूक ही है तो उसे ख़त्म करने का हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। खुलकर बोल ज़रा। वडेरा खड़खड़ाती आवाज़ में बोला, साईं, अगर ये बट साईं वाकई मोहम्मद मलूक है तो उसने बड़ी मकारी और चालाकी से इस दुनिया से बेजार फ़कीर का रूप धारा है। यही नहीं, गोठ और आसपास के तर के इलाकों के लोगों को भी उसने अपना मोकिद बना लिया है। अगर हमने उस पर सीधी कार्रवाई करते हुए उसे कत्ल करना चाहा तो लोगों में हमारे खिलाफ नफरत और इश्ताल फैलेगा। मैं चाहता हूं कि हम ये काम निहायत राजदारी से करते हुए उसका पत्ता साफ कर डालें। मुंशी जुमा खान ने अपनी बात ख़त्म की तो वडेरा अपने सर को तफहीमी जुम्बश देते हुए पुरख्याल लहजे में बोला, बात तो तेरी 12 आने दुरुस्त है, लेकिन एक बात है मुंशी, हुक्म करो साईं। यार, ये बट साईं भला मोहम्मद मलूक कैसे हो सकता है? वो मर्दू तो अपना मुंह काला करके उसी रोज़ रूपोश हो गया था जब हमने अपनी धी सोमरी को कत्ल किया था। फिर भला ये दोबारा यहाँ क्या लेने आएगा सवाए अपनी मौत को दावत देने के? हाँ साईं, यही तो बात मुझे भी उलझी हुई लगती है। कम वक्त ये मिट्ठू और बिचल भी किसी काम के नहीं। इतने दिन गुजर चुके हैं, अभी तक उन दोनों ने भट्ट साईं के बारे में कोई खोज नहीं लगाया है। पता नहीं किस चक्कर में पड़ चुके हैं। मिट्ठू गायब है, बिचल की दिमागी हालत खराब हो चुकी है, पता नहीं क्या कहानी है।
वडेरे ने उलझन अमेज परेशानी के साथ कहा। मुंशी जुमा खान खामोश नज़रों से वडेरे का चेहरा तकने लगा। साईं वड्डा कहर हो गया। साईं वो बाहर। अरे बोलता क्यों नहीं बाबा, हुआ क्या है? वडेरे को बिल आकर अपने उस चाकर पर गुस्सा आ गया। ये सुबह का वक्त था और वडेरा हवेली से सीधा औताक में आ बैठा था। एक तरफ मुंशी जुमा खान रजिस्टर गोद में रखे कुछ हिसाब किताब में मसरूफ था। वडेरा ज़्यादा वक्त औताक में ही गुजारता था और उधर ही मेहमान लोगों और हारियों वगैरह के मामला सुना करता था। उस चाकर की तरफ अब मुंशी जुमा खान भी चौंकते हुए मतवज्जा हो गया। साईं वो मिट्ठू, हाँ क्या हुआ है? आ गया? वो किधर गया था? बुला ज़रा अंदर, मैं खबर लूँ उसकी। साईं वो तो नहीं आया, उसकी लाश आई है। क्या बकता है रे तू? साईं मेरा मतलब है मिट्ठू को किसी ने कत्ल कर दिया। ये सुनना था कि वडेरा एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसकी बरमाती नज़रें चाकर पर जम कर रह गईं। वडेरे को जैसे चाकर की बात पर यकीन नहीं आया, लिहाजा वो उसे कुछ कहे बगैर घूरता हुआ औताक से बाहर निकला। सामने निगाह पड़ते ही बुरी तरह ठटका। सामने छप्पर नुमा बड़े से साहिबान तले एक खड़ी चारपाई पर मिट्ठू की खून में लथपथ लाश पड़ी हुई थी। चारपाई के गिर्द वडेरे के आदमी मखमूम सूरतों के साथ खड़े थे। उसके अकब में मुंशी जुमा खान भी दौड़ा चला आया। सामने नज़र पड़ते ही उसके हाथ से रजिस्टर छूट गया। अरे बाबा, ये किसकी इतनी जुर्रत हुई मेरे आदमी को लिटाने की? वडेरा गद्दार लहजे में धाड़ा। जवाबन लोगों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। गोट के देगर लोगों का भी वहाँ मजमा लगता जा रहा था। अरे कोई बताता नहीं है मुझे, किसने अपनी मौत को आवाज़ दी है? वो हीरे आदमी का खून करके। वडेरे के दोबारा धाड़ने पर एक आदमी ने कपकपाते लहजे में बताया, साईं वड्डा हमें मालूम नहीं, मिट्ठू की लाश हमें कब्रिस्तान से मिली है। मीरू गोरकर ने हमें इतला दी थी। मुंशी हाजिर वड्डा साईं। मुंशी जुमा खान बारीक तार की तरह झंझना कर लरजीदा आवाज़ में बोला। अरे इसी वक्त कादरे खोजी को कब्रिस्तान भेज, वो खरा पैर के निशाना ढूंढे। वडेरे सलार खान ने गुस्से से फंकते हुए कहा। बराबर वड्डा साईं, मैं अभी जाता हूँ। मुंशी जुमा खान ये कहकर दौड़ा और उसके बाद वडेरे ने आगे बढ़कर चारपाई पर पड़ी मिट्ठू की लाश को देखा। उसका गला कटा हुआ था। साफ नजर आ रहा था कि मिट्ठू के गले पर तेज धार आले से चीरा लगाया गया है। अरे कादू, इसके कफन दफन का बंदोबस्त कर। बाबा तकड़ा जल्दी, वडेरा ने करीब खड़े अपने एक आदमी से कहा और वो ज़रा झिझकते हुए बोला। साईं वड्डा इसकी थाने रपट। अरे भाड़ में गया थाना, ये हमारा मामला है, पुलिस का काम नहीं, हम खुद इससे निपटेगा। वडेरे ने कहर आलूद लहजे में कहा और फिर दोबारा दो नामी शख्स को कुछ कहने की जुर्रत ना हुई और उसने उसी वक्त लाश को उठवाने का कहा और वडेरा गुस्से में मुठियां भींचता हुआ औताक में आ गया। गोठ था ही कितना बड़ा, महज चंद सौ नफूस, लिहाजा मिट्ठू के बेहमाना कत्ल की खबर आग की तरह आनन फानन फैल गई। चूँकि कत्ल की यह खबर हारी मीर मोहम्मद के कत्ल के 2 रोज़ बाद ही का सानहा थी, इसलिए अफवाहों ने इश्ताल अंगेज़ी को मज़ीद हवा दी और लोगों ने मिट्ठू के कत्ल के डांडे हारी मीर मोहम्मद के कत्ल से मिला दिए। चंद अजीबोगरीब अफवाहें भी गर्दिश करने लगी थी कि मिट्ठू काला जादू करने की गरज से कब्रिस्तान गया था और वहाँ किसी बदरू ने गुस्से में आकर उसका गला काट डाला, क्योंकि मिट्ठू की लाश एक शिकस्ता कब्र के अंदर से मिली थी। मिट्ठू की तदफीन हो चुकी थी। कादर बख्श अल मारूफ कादरे खोजी ने उसी वक्त खुरा उठाने की कोशिश की थी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो नाकाम हो गया। हालांकि उसका ये जद्दी पुश्ती पेशा था और उसके लिए ये बात मशहूर थी कि ये तो ज़मीन पर रेंगती चींटियों की कतारों के निशाना देखकर उनके सुराखों का पता लगा लेता है कि चींटियों की कौन सी कतार किस सुराख में दाखिल हुई है। अपनी इस नाकामी पर वो खुद भी हैरान था, हत्ता कि वो अपनी इस नाकामी से इस कदर दिल बर्दाश्ता और शर्मसार हुआ कि उसने ये पेशा हमेशा हमेशा के लिए
तर्क कर देने की कसम खा ली। साईं भोतार, ये काम उन दोनों भाइयों का ही हो सकता है। उन्होंने अपने बाप मीर मोहम्मद के कत्ल का प्लान लिया है। मिट्ठू की तजहीज़ व तकफीन के चंद घंटों बाद मुंशी जुमा खान सरगोशियाना लहजे में वडेरे सलार खान से कह रहा था। उस वक़्त उन दोनों के सिवा और कोई औताक में मौजूद न था। उसकी बात सुनकर रली बिछी चारपाई पर नीम दराज वडेरे सलार खान ने एक लंबी और पुररऊनत हंकारी भरी। अगर ये दुरुस्त है तो मैं उन दोनों भाइयों को खौनख्वार ऊँटों के तवीले में फेंक दूंगा। वडीरे ने दांत पीसते हुए कहा, मगर मुंशी, मेरा दिल नहीं मानता कि ऐसी जुर्रत ये दोनों भाई कर सकते हैं। साईं भोतार, सच पूछो तो मेरा दिल भी नहीं मानता कि मीर नवाज और अहमद नवाज बदला लेने की खातर हमारे मिट्ठू जैसे ख़ास माड़ों आदमी का भी खून कर दें। मुंशी ने पुरसोच लहजे में कहा। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। साईं, अगर ये बिचल कुछ बताने के काबिल हो जाए तो हो सकता है कुछ पता चल सके कि मिट्ठू के साथ क्या वाक़या पेश आया था, क्योंकि ये दोनों आपके हुक्म के मुताबिक बट साईं की टोह लेने में मसरूफ़ थे। मुंशी, पहले मुझे ये बता, हमारे किस आदमी ने हारी मीर मोहम्मद को ठिकाने लगाया था? वडेरे ने धीमी आवाज़ में किसी ख्याल के तहत पूछा। पिड़ियल ने यह कारनामा अंजाम दिया है साईं, मुंशी ने भी होले से कहा। अभी मुंशी ने इतना ही कहा था कि अचानक एक चाकर ने अंदर आकर इतला दी, साईं भोतार, वो थानेदार साहब आए हैं। इस इतला पर वडेरे ने कदरे चौंक कर मुंशी की तरफ देखा। मुंशी जुमा खान वडेरे को चौंकते देखकर फौरन सरगोशियाना अंदाज में वडेरे से बोला, साईं, मिट्ठू के कत्ल का इल्ज़ाम दोनों भाइयों पर ही थोपना। वडेरे ने मैनीखेज अंदाज में धीरे से अपने सर को जुम्बश दी और चाकर की तरफ देखते हुए मखसूस अंदाज में अपना सर हिला दिया। वो इशारा समझकर वापस पलट गया। फिर अगले ही लम्हे मुतलका थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर आली जा हाथों के अंगूठों से अपनी पतलून को ऊपर खींचता हुआ अंदर दाखिल हुआ और फिर न्याजमंदाना अंदाज में वडेरे को सलाम करके बोला, अपनी मान वारे साईं के सर की खैर होवे। सलाम साईं। बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह, भली करे, आओ आवो। वडेरे सलार खान भी अपनी लंबी चौड़ी चारपाई से उठ खड़ा हुआ और फिर मानके के बाद वडेरे ने सामने मोड़े पर उसे बैठने का इशारा किया। अरे बाबा, ये क्या हो गया? हमारे हीरे जैसे यार मिट्ठू को उन दोनों भाइयों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वडेरे ने शिकायती लहजे में बात शुरू की। साईं, मैंने तो उन दोनों को थाने में ही बड़ी फैंटी शैंटी लगाई थी और अपनी बाप के कत्ल के सिलसिले में आपके नाम का पहाड़ा ही बुला दिया था। इंस्पेक्टर ने कहा, देख ले बाबा, उन्होंने बदला ले लिया, वो भी हमसे, यानी वडेरे सलार खान से। वडेरे के लहजे में रऊनत अमीज़ खफगी थी। वडेरा साईं, आपसे एक गलती हो गई। इंस्पेक्टर आली जा ने गोया अपनी जीप मिटाते हुए वडेरे से कहा। वडेरा फैली हुई आंखों से इंस्पेक्टर को घूरते हुए मुस्तफर हुआ। अरे बाबा, कैसी गलती? साईं, आपने थाने बगैर रिपोर्ट लिखाए मिट्ठू की तदफीन का डाली, इसका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। वडेरा उसकी बात सुनकर शाहाना अंदाज के साथ बोला, अरे बाबा इंस्पेक्टर साहब, ये सारा अपना इलाका है, हमने सोचा पुलिस को जहमत ना ही दें। साईं, ये बात आपके लिए ही बेहतर था, इस तरह आपकी कानूनी पोजीशन बेहतर हो सकती थी। अरे बाबा, तू जो अपना यार है, अब भी तो मीर नवाज और अहमद नवाज के खिलाफ चालान दर्ज हो सकता है। वडेरे ने मैनीखेज मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर करीब बैठे बाछे फैलाए मुंशी जुमा खान से बोला, अरे मुंशी, हाज़र साईं बेटा। अरे जा बाबा, अपने इंस्पेक्टर साहब के लिए कुछ चाँपड़ी का बंदोबस्त कर। हाँ सही, बराबर, अभी गया। साईं, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। मुंशी के कमरे से निकलते ही इंस्पेक्टर आली जा ने चंदी चंदी आंखों से वडेरे की तरफ देखकर ऊपरी दिल से कहा, वरना चाँपड़ी के नाम से उसकी तोंद में लड्डू फूटने लगे थे। ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि वडेरे की चाँपड़ी किस नौइयत की होती है। थोड़ी देर बाद मुंशी वापस आया तो उसके अकब में दो चाकर हाथ में दो ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुए। एक ट्रे में वाइन की बोतल और दो पैग धरे थे, जबकि दूसरा धुआं उड़ाती ट्रे में
बट तीतरों के सालम पठोर रखे हुए थे, जिनकी इश्तहा अंगेज खुशबू ने हराम खोर इंस्पेक्टर आली जा की तोंद में खुलबिली मचा दी और वो नदीदेपन से उन लवाजमात की तरफ देखने लगा। दोनों डिशें इंस्पेक्टर आली जा के सामने एक छोटी सी मेज़ पर रख दी गई। इंस्पेक्टर आली जा ने झपट कर पहले वाइन की बोतल से एक पैग अपने लिए बनाया और दूसरा वडेरे के लिए, और फिर एक वडेरे की तरफ बढ़ाया तो वडेरा कसरे नफसी से बोला, अरे अरे बाबा इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों तकलीफ़ करते हो? तकलीफ़ कैसी साईं, वैसे मैं ज़रा हार्ड पैग पीता हूँ। ये कहकर उसने पैग की चुस्की भरी। हाँ बाबा, तो फिर आज से ही चालान बना लो उन दोनों भाइयों के खिलाफ़, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उन दोनों के अभी और इसी वक्त गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दो। हाज़र साईं, ऐसा ही होगा, आप क्यों फ़िक्र करते हो? इंस्पेक्टर ने असबात में गर्दन हिलाते हुए सआदतमंदी से कहा और वडेरा मैनी खेज मुस्कुराहट के साथ अपने सर को ऊपर नीचे जुम्बश देने लगा। साईं कोड़ियल शाह जब से बट साईं की झोंपड़ी से खौफजदा होकर दुम दबाकर भागा था, तब से उसकी हालत अजीब हो गई थी, मगर साथ ही वो अंदर से खुश भी था। इस पुरअसरार वाक़े ने उसकी आंखें खोल दी थीं और आइंदा के लिए उसकी राहें खोल दी। चूँकि वो खुद सिफली अलूम और काले जादू सीखने का ख्वाह था, उसके लिए उसने तवील और कड़ी रियासतें भी की थी और रातों को वो सिफली अलूम के हसूल की खातर अतराफ़ के गोठों के मुख्तलिफ़ कब्रस्तानों और वीरानों की खाक भी छाना करता था। उन सिफली अलूम के ज़रिए ज़्यादातर भटकी हुई रूहों को काबू करने और उनसे मर्ज़ी के मुताबिक काम लेना होता था। वो अपने तई खुश था कि आज उसने बट साईं की झोंपड़ी में जाकर बड़ा पाला मारा था। एक अहम और पुरअसरार राज उसकी आंखों के सामने आश्कारा हुआ था। बट साईं को भी अपनी ही तरह सिफली इल्म का गर्विदा समझने लगा था, जिसने एक हसीन और जमील लड़की की रूह को काबू कर रखा था, और रूह भी किसकी? वडेरे सलार खान की बड़ी बेटी सोमरी की। साईं कोड़ियल शाह ने सोमरी के बाप से हाथों कत्ल होने से पहले सोमरी को वडेरे की हवेली में ही देखा था, जब एक दिन वडेरे का आदमी उसे हवेली बुलाने आए थे। सोमरी को उस वक़्त दौरे पड़ा करते थे और उसे साईं कोड़ियल को सोमरी का जिन भगाने के लिए बुलाया गया था। इसलिए आज जब साईं कोड़ियल ने बट साईं की झोंपड़ी में वडेरे सलार खान की मकतूल बेटी सोमरी की रूह को देखा तो उसे फ़ौरन पहचान गया, मगर अब उसे अपने आप पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि वह उतना बुज़दिल क्यों साबित हुआ। खौफजदा होकर भाग आया। उसे सोमरी की बदरू के सामने डट जाना चाहिए था। अब कोड़ियल की इस बात पर यकीन हो चला था कि बट साईं सिर्फ दिखावे का पीर फ़कीर बना हुआ है, वरना दरूने खाना उसके हकीकत सिफली अलूम के माहर की सी थी। इसलिए वो किसी को अपने करीब भी फटकने नहीं देता था, मबादा उसके राज से लोग वाकिफ़ ना हो जाएं। पीर साईं, आपने तो कमाल कर दिया। वैसे अब तो आपको हमारी बात का यकीन आ गया होगा ना कि हमने बट साईं की झोंपड़ी के आसपास जिस खूबसूरत औरत को देखा था वो एक रूह ही थी। उसके सामने बैठे दोनों चेलों अरबीलू और मग्गू में से एक ने कहा, हाँ ये बात वाकई सही है, तुमने बिल्कुल ठीक खोज लगाया था। साईं कोड़ियल को अपने दोनों चेलों की बात रखनी ही पड़ी, जिसके बाद अरबीलू और मग्गू अपनी तारीफ से अकड़ गए। साईं, और कोई हुक्म हो तो बताओ। यार एक बात समझ में नहीं आती, ये बट साईं आखिर है कौन और कहाँ से आया है? साईं कोड़ियल खिला में किसी गैर मरी नुक्ते पर अपनी पुरसोच नज़रें मरकूज़ करते हुए पुरअसरार लहजे में बोला, साईं अब उसकी क्या ज़रूरत है पता लगाने की? अरबीलू ने कदरे बेदारी से कहा, असल काम तो हो गया, अब ये बताओ आगे क्या करना है हमने? अरे बाबा, और क्या करना है, तुम दोनों टो में लगे रहो और अब ये पता लगाने की कोशिश करो कि उस बट साईं ने और कितनी रूहों को अपना गुलाम बना रखा है। ज़रूर वो अरेब करीब के वीरानों में सिफली रियाजत करने को भी जाता होगा, साईं कोड़ियल ने कहा। अरबीलू और मग्गू ने सहमी हुई नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। उनके बशरों से साफ महसूस हो रहा था कि उन दोनों को बदरूहों वाला काम बड़ा कठिन महसूस हो रहा था।
बिलआखिर दोनों अपने गुरु घंटार साईं कोड़ियल के आगे मलती जाना अंदाज में अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, पीर साईं हमें कोई और काम दे दो, मगर इस रूहों वाले चक्कर से हमें बड़ा डर लगता है। उन दोनों के बीच वक्त दादे फरियाद करने पर साईं कोड़ियल फौरन बोला, अरे इसमें डरने की क्या बात है, तुम दोनों कोई मामूली शख्स के आदमी हो, किसी की क्या मजाल कि पीर साईं कोड़ियल के चेलों का कोई ज़रा सा भी कुछ बिगाड़े। मैं तुम दोनों पर पड़कर फूंक दूंगा और हर बला तुमसे दूर रहोगी। उसकी बात सुनकर अरबीलू और मग्गू ने एक दूसरे की तरफ देखा और बीक वक्त दोनों के दिल में ये बात आई कि वो साईं कोड़ियल उसका जवाब दें कि साईं फिर आप क्यों उस रात बट साईं की झोंपड़ी से सोमरी की बदरू का नज़ारा करके दुम दबा कर भागे थे, मगर उनमें ये जुर्रत ना हो सकी।